ये टॉपिक्स देखने वाले हैं ना, वैलिडेशन। और वैलिडेशन में सबसे पहला देख रहे हैं हम प्रोग्रामेटिक वैलिडेशन, ठीक है। मैंने अभी भी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि वैलिडेशन दो तरीके की हो सकती है, एक्सएमएल बेस्ड और प्रोग्रामेटिक बेस्ड, ठीक है। कल हम लोगों ने जो देखा था वो बेसिकली प्रोग्रामेटिक बेस्ड के बारे में बात करी थी, और ये दोनों मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके हमारे पास क्या हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन करने के तरीके हैं, इससे हम सर्वर साइड वैलिडेशन कर सकते हैं। सो द थिंग इज, ऐसा पूछा जाता है हाउ यू कैन डू अ वैलिडेशन and what are the types of validation. So it's a server side validation, and there are two ways to do a validation. One is the programmatic and another is the XML based validation. Once we complete this validation thing, then we move to this second thing that is called internationalization. So internationalization is used to create multi-language website. So it means it will work on Hindi, English or any other language. Then we talk about the third thing, that is dynamic method invocation. Dynamic method invocation का मतलब है आपके पास कि मैं एक स्क्रीन बनाऊँ, उसमें मेरे पास 4 बटन्स हो और चारों बटन्स अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. सो इट मीन्स which method will be invoked by which button. I want this as a dynamic, right? So for this there is a dynamic method invocation thing. Then अभी तक हम लोगों ने एक ही structured example बनाई है. So if I have multiple actions, multiple JSPs, so instead of making in one single file, divide into separate files, that is multiple structured XML, right? और नेम स्पेस इसलिए आपके पास कि आपके पास जो URL आता है उस URL में आप स्पेसिफाई कर सको these actions are belongs to admin और these are belongs to customer. So we will use a namespace thing for this, right? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैलिडेशन की, for making server side validation. So first thing is, आपके पास दो तरीके की वैलिडेशन हो सकती है, either on a client side, either on the server side. So for client side validation, we have the technique called JavaScript, and for server side validation, we have a validation thing that is either it would be a programmatic or either it is an XML based. तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं ऐसा करने की, right? For doing this server side validation, we are using the struts. So struts has an advantage of doing this kind of validation, right? अब server side validation क्यों चाहिए? Server side validation इसलिए चाहिए because I want to validate a business. So for example, मेरे को ऐसा करना है कि I want to validate कि user ने date enter किया है या नहीं किया. So in the text box, user enter the date or not. So for this, the answer is JavaScript, क्योंकि that is on the client side. But I want to check कि जो उसने डेट एंटर किया है, that date is not a holiday, कि भाई जो आज जो डेट एंटर कर रहा है फॉर अ ट्रांजेक्शन, जैसे आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, सो ऑन द हॉलीडे यू कैन नॉट डू अ ट्रांजेक्शन, राइट? सो आई वांट टू चेक दैट डेट इज नॉट अ हॉलीडे. सो इट मीन्स इट विल बी चेक ऑन सर्वर साइड, बिकॉज सर्वर साइड पे डेटाबेस पे जाएगा, इन डेटाबेस देयर वुड बी अ हॉलीडे टेबल, और इस हॉलीडे टेबल में जाके वो चेक करेगा इज देयर इट्स एन हॉलीडे और इट्स नॉट. सो फॉर डूइंग दिस आई यूज अ सर्वर साइड वैलिडेशन, right? So there are two things, that is client side and the server side. So our focus is on the server side. So to doing this server side validation, the first need is हमें उसका flow समझना है कि how the server side validation is happens. So for doing a server side validation, we have an action, और action हमें पता है action is nothing in struts, it's a model, जो हम लोगों ने first session में बात करी थी, ठीक है? So action is a model. And in this action we will override a validate method. So we'll create a validate method, and inside this validate we will write our validation logic. तो flow आपके पास ये है कि whenever a view is nothing, it's a JSP, right? And JSP is calling an action. ये हमें पता है कि JSP is calling an action, and whenever it is calling an action, the middle layer is a controller, that is filter dispatcher, जो इस JSP के डेटा को कैरी करता है, मॉडल तक हैंड ओवर करता है. When it is handing over to the model, it is internally calling the setter method of model. So it is calling an setter method of model, and after calling the setter method, it is calling a validate method. So either you override this validate method or not. So if you override it, so it means you have a definition of validation. If you do not override it, it's a blank method. So it will bypass it, right? So अगर आपने validate method लिखा है and आपने उस validate method को चलाया है, so in validate method you have field error thing. So it means if there is an error in validation, it will reach to the input
राइट। एंड इनपुट इज योर कि भाई अगर वैलिडेशन फेल होता है इट रिटर्न एन इनपुट इंटरनली, और इनपुट को आप मैप करोगे वापस अपने पेज से, राइट। सो अगर हम देखें, सो दिस वुड बी लाइक, सो आई हैव अ सैंपल ऑफ दिस वैलिडेशन. So in this validation I have this login.jsp. So in this login.jsp मैंने एक फॉर्म डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी. So we know how we can design a form by using S form, and for S form we need to use a taglib of struts tag, right? So in S form I specify method उसका क्या होगा और उसका एक्शन क्या होगा, and this action is your model name, right? और यहाँ हमने text box बनाया. So text box has a name and now we have a key. ठीक है, तो पहले अभी तक हम लिख रहे थे लेबल. सो लेबल पे जाके आप स्पेसिफाई करते थे लेबल इक्वल्स टू एंटर द यूजर आईडी और एंटर द पासवर्ड. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट हार्ड कोड थिंग एंटर द यूजर आईडी एंटर द पासवर्ड, वी विल मेंटेन इन अ सेपरेट फाइल, एंड दैट फाइल आई मेंटेन इन जावा रिसोर्सेज. सो इनसाइड अ जावा रिसोर्सेज आई हैव src folder, and inside src I have global.properties. So this is your property file where you maintain your messages. Message means कि भाई enter the user ID, enter the password is actually maintained in this file. So this is the key, that's a label.user ID. This key could be anything, and this is the value of the label. So enter the user ID is a label, right? Same मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है enter the name. So it has a key. For submit button it has a key. For errors it has a key and it has a value, right? And this is maintained in global.properties. So this file name can be anything, कुछ भी हो सकता है इस फाइल का. एंड दिस नेम यू नीड टू मेंटेन इन struts.xml. आपको जाकर इसकी एंट्री कहाँ करनी है, struts.xml. और struts.xml में यू हैव अ टैग कॉल्ड कांस्टेंट टैग, एंड इन दिस कांस्टेंट टैग यू नीड टू टेल कि भाई मेरे जो मैसेजेस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, राइट? तो अगर हम JSP में मेंटेन करते हैं तो दैट्स एन हार्ड कोड थिंग. तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई एंटर द यूजर आईडी को हटाओ और उसकी लिखो टाइप यूजर आईडी, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि किस JSP मैंने लिखा है. इंस्टेड ऑफ इट आपको एक फाइल याद रखनी है, दैट्स global.property, जहाँ पर आप मैसेजेस मेंटेन रख रहे हो, ठीक है. और उसके एंट्री आपको स्ट्रट्स को समझाना है कि स्ट्रट्स जाकर उसे कहाँ जाके ढूंढना शुरू करे, इन ग्लोबल. सो दिस इज योर फाइल नेम. ये आपके पास सेम होगा, यानी कि स्ट्रट्स हमेशा कैसे ढूंढता है, स्ट्रट्स custom.iiting.resources को, और उस रिसोर्सेज की आप वैल्यू बता रहे हो अच्छा ग्लोबल. तो इसका मतलब वो यहाँ जाके ढूंढना शुरू करेगा उसे global.properties में, ठीक है. तो इसका मतलब जब login.jsp चलेगा उसके अंदर की होगी, और इस की को जाके कहाँ ढूंढा जाएगा, इसको जाके ढूंढा जाएगा पहले struts.xml में. struts.xml से बता देगा कि उसे कहाँ जाके ढूंढो, ग्लोबल में. और ग्लोबल हमेशा आप कहाँ रख रहे हो, src में, ठीक है. दो फाइल में कॉन्स्टेंट्स वाली, तो अगर इस तरह की फाइल में प्रॉपर्टीज तभी भी तो आपको मल्टीपल मेंटेन करना है. तो मल्टीपल ये ऐसे रहेगा struts, ये ऐसे रहेगा, आपको नाम बदलना है बस. ये तो struts का पैकेज नेम है. struts इसे ढूंढता है, इसके एवज में वो क्या ढूंढता है, आपके पास फाइल का नाम. तो आपको यहाँ ये मल्टीपल मेंटेन करना है. वो डॉट प्रॉपर्टीज ही होना चाहिए. कौन सा, हाँ डॉट प्रॉपर्टी फाइल होनी चाहिए. हमेशा प्रॉपर्टी फाइल में ही आपके पास की वैल्यू मेंटेन होते हैं. ये क्लियर हो आप सबको, ठीक है. अब इससे बेनिफिट क्या होगा, कुछ भी हार्ड कोडिंग नहीं है हमारे कोड में. जब भी मेरे को किसी भी लेबल को चेंज करना है, आई जस्ट नीड टू गो टू द global.property और मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है. Now we maintain the action. So this is my action, login action, जो हम कल भी मेंटेन कर रहे थे. So in this login action, the compulsory thing is हमें किसे एक्सटेंड करना है, एक्शन सपोर्ट को. ये कल हम लोगों ने बात पढ़ी थी, हाँ, क्योंकि वैलिडेट मेथड एक्शन सपोर्ट से आता है, और मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर रखा है वैलिडेट को. ये सेम कोड है जो हम लोगों ने कल किया था. दैट्स अ यूजर आईडी इज लेंथ इज इक्वल्स टू 0. सो इफ इट इज ब्लैंक चेकिंग, तो अगर वो ब्लैंक है तो हमने क्या ऐड कर दिया उसमें, फील्ड एरर. और फील्ड एरर में आपको किसका नाम देना है, यूजर आईडी का. सो दिस यूजर आईडी इज एक्चुअली दिस फील्ड नेम, कि वो मैसेज कहाँ दिखाएगा, किसके आगे दिखाएगा. सो मैंने इसका नाम दे दिया यूजर आईडी, यूजर आईडी के आगे दिखाएगा. और उसके बाद मैंने की का नाम दिया है. कल हम लिख रहे थे यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू, दैट इज यूजर आईडी कांट बी ब्लैंक और पासवर्ड कांट बी ब्लैंक. और मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस डॉट गेट टेक्स्ट लॉगिन फॉर्म डॉट यूजर आईडी एरर. इसका मतलब ये जाकर गेट टेक्स्ट मेथड है इसका, जो जाकर कहाँ जाकर ढूंढता है, global.properties में, और यहाँ जाके ढूंढेगा यूजर आईडी एरर. और यहाँ लिखा आएगा यूजर आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है. इसका मतलब सारे हार्ड कोड मैसेजेस अब कहाँ मेंटेन है, global.properties में, रेदर देन आपने कोड में लिखो. तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है, यूजर बोलता है कि आई डोंट वांट टू शो दिस मैसेज, इंस्टेड ऑफ दिस शो दिस मैसेज.
तो आपको कोड में जाके चेंज करना पड़ता है। और कई मैसेज ऐसे होते हैं जो आप कई बार दिखा रहे होते हैं, जैसे कई जगह दिखा रहे हो, अब यूजर आईडी कांट बी ब्लैंक, अब प्रोग्रामर अलग अलग हिसाब से लिख सकता है उसे, अलग अलग प्रोग्रामर। सो इंस्टेड ऑफ इट मेंटेन इन अ वन फाइल। सबको जब भी मैसेज चाहिए होंगे वो कहाँ से पिक करेंगे, ग्लोबल डॉट प्रॉपर्टीज में से। क्लैरिटी है? सेम पासवर्ड के लिए कर दिया या नेम के लिए कर दिया मैंने कि अगर नेम इज ब्लैंक सो इट विल शो इन नेम, राइट। ओनली द थिंग इज व्हेन दिस वैलिडेशन मेथड इज कॉल्ड, जब भी वैलिडेशन मेथड कॉल होगा, कैसे कॉल होगा, माई जीएसपी कॉल्ड एक्शन, है ना, और एक्शन कॉल होने से पहले क्या चलना है, सेटर, सेटर के बाद क्या चलने वाला है, वैलिडेट। अब वैलिडेट अगर फेल हुआ तो वैलिडेट मेथड आपको रिटर्न में आपको क्या देता है, डेट विल रिटर्न इनपुट। आपको क्या रिटर्न करता है, इनपुट, और इनपुट कहाँ पर पहुंचाता है वापस, ये कल ही देखा है हम लोगों ने ना सेम, तो वापस को कहाँ पहुंचा देगा, login.jsp पे। अगर वो वैलिडेशन पास होता है, इट मीन्स देयर इज नो एरर इन द वैलिडेशन, तो वो जाकर आपका कौन सा मेथड चलाता है, एग्जीक्यूट, राइट, यानी कि वो आपका लॉजिक चलाना शुरू करता है। और एग्जीक्यूट पे जाकर मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब ये है कि वो सक्सेस से आपको कहाँ पहुंचाएगा, welcome.jsp, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस थिंग। इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। So take some time to start the server. तो सर्वर स्टार्ट हो गया हमारे पास, एप्लीकेशन हमारे पास आ गया। आई नीड टू स्टार्ट ब्राउज़र। अब मैं यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ और मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे को कहाँ पहुँचाएगा, एक्शन पे। और आप लोगों ने ध्यान दिया, कल हमारे पास ब्लैक कलर के मैसेज आ रहे थे, इस बार रेड कलर के आ रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज, जब भी मैसेज आते हैं ना, अगर आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा ये जितने भी एरर आते हैं उसके लिए स्ट्रट्स डायनेमिकली क्या क्रिएट करता है, स्पैन। और स्पैन के अंदर मैसेज डालता है यूजर आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। और स्पैन की क्लास का नाम देखो क्या है, एरर मैसेज। मैंने जाकर क्या किया, इस क्लास को ओवरराइड कर दिया। तो अगर आप देखो login.jsp में आई क्रिएट अ स्टाइल टैग, और उस एरर मैसेज में आके मैंने क्या लिख दिया, कलर रेड। तो अगर मैं यहाँ जाकर और भी चीज़ स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया फॉन्ट, और फॉन्ट वेट दे देते हैं, एंड आई एम सेइंग फॉन्ट वेट बोल्ड, सो द मैसेज विल बिकम एज अ बोल्ड। तो अगर मैं अब जाकर दोबारा इसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इट इज कमिंग बोल्ड, क्योंकि मैंने क्या किया, उसकी क्लास को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट उसके ब्लैक कलर के मैसेज है। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपको इसे ओवरराइड करना है, अगर आपको भी बोलता है कि मैसेज राइट में आने चाहिए, तो आप उसका मार्जिन सेट कर दो CSS में जाकर, तो इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड में कुछ फिल करता हूँ, इट मीन्स इट इज नॉट ब्लैंक, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस लॉगिन, तो ये मेरे को कहाँ पहुँचाता है, वेलकम यूजर, क्योंकि वैलिडेशन फेल नहीं होती, इनपुट रिटर्न नहीं होता, एग्जीक्यूट मेथड चलता है, और एग्जीक्यूट आपको कहाँ पहुँचा जाता है, वेलकम पे, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेटिक वैलिडेशन, ठीक है। तो प्रोग्रामेटिक वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने स्टेप्स याद रखने हैं। द ओनली थिंग इज, इन एक्शन यू नीड टू ओवरराइड द वैलिडेट मेथड, एंड वैलिडेट वैलिडेशन चेक करेगा, दैट्स अ यूजुअल जावा कोड। और जैसे आप ब्लैंक डालने के बाद आप एंटर कर रहे हो तो सेशन क्रिएट कर देते हैं। सेशन हैंडलिंग बाय डिफॉल्ट इसका पार्ट है ना, स्ट्रट्स का। स्ट्रट्स हर पेज से, आपको अगर पता हो तो JSP में बाय डिफॉल्ट सेशन ट्रू होता है, तो उसका मतलब सेशन बनता ही है वहाँ से, है ना। स्ट्रट्स से बोला है कि मेरे पास सेशन है, तो सेशन हैंडलिंग हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि सेशन कैसे मेंटेन करेंगे इसके अंदर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो वापस बात करते हैं कि हमें सबसे पहले एक्शन के अंदर वैलिडेट मेथड ओवरराइड करना है, और ओवरराइड करते वक्त वैलिडेशन का कोड लिखना है कि इट्स लेंथ इज 0 और सम अदर वैलिडेशन, कि भाई इसमें अल्फाबेट आने चाहिए, कुछ और आने चाहिए। और उसके बाद आपको ऐड फील्ड एरर यूज़ करना है, और ऐड फील्ड एरर में जाके बताना है कौन सी फील्ड पे क्या एरर मैसेज आप दिखाना चाहते हो। और जितने भी एरर मैसेजेस हैं
उन्हें जाकर कहाँ मेंटेन करना है, तो ग्लोबल डॉट प्रॉपर्टीज में। और ग्लोबल डॉट प्रॉपर्टीज की एंट्री कहाँ जाकर करनी है, स्ट्रक्चर्ड एक्सएमएल में, ताकि आपकी कोई भी हार्ड कोडिंग ना हो। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या है कि अगर हाँ जिस ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में कौन सा है, struct.xml में जिस ऑर्डर में आपने लिखा जिस ऑर्डर मीन्स मतलब कि यदि कांस्टेंट कांस्टेंट आप इसे कहीं भी नीचे डाल दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पैकेज से बाहर होगा, पैकेज टैग से बाहर लिखोगे, पैकेज के अंदर नहीं आएगा। और जो अंदर है उनका भी कुछ और उनका ऑर्डर ये है कि पैकेज टैग के इनसाइड ही आप एक्शन बनाते हो, तो एक्शन ऑलवेज कम्स इन पैकेज, और रिजल्ट एक्शन ही देता है, तो रिजल्ट हमेशा एक्शन के इनसाइड ही आएगा। ठीक है, और ये बताता है आपको, हेल्प देता है। देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ जाकर पैकेज के इनसाइड जाऊंगा तो मेरे को बता रहा है कि पैकेज के इनसाइड एक्शन आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक्शन बनाऊंगा तो बताएगा कि एक्शन के इनसाइड ही मेरे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हेल्प देता है, कोड लिखते हैं। राइट, दिस इज क्लियर। अब अगर मेरे को इन फ्यूचर जब भी मैसेज चेंज करना है, जैसे मेरे को बोले यूजर आईडी कैन नॉट की जगह मैं बोलूँ कांट बी ब्लैंक, ठीक है, एंड नेम कांट बी ब्लैंक, तो इसका मतलब मुझे जाके कहाँ चेंज करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी फाइल में। प्रॉपर्टी फाइल में चेंज करूँगा कोड में अपने आप, बिकॉज मैसेज हार्ड कोडेड नहीं है आपके पास। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन है कि आप जब भी कोई वेबसाइट बिल्ड करो, डू नॉट राइट हार्ड कोडेड थिंग्स, ऑलवेज मेंटेन इन अ प्रॉपर्टी फाइल। ठीक है, क्लैरिटी है। अच्छा, नेक्स्ट हम द सेकंड काइंड ऑफ वैलिडेशन इज कॉल्ड एक्सएमएल बेस्ड। सो एक्सएमएल बेस्ड वैलिडेशन का मतलब है कि आई डोंट वांट टू राइट एनी लॉजिक, सो इट मींस दैट लॉजिक इज ऑलरेडी रेडीमेड, लॉजिक भी बिल्ड करके रख दिया उसने कहा यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर कि आपको ब्लैंक चेक करना है, या आपको ईमेल चेक करना है, अल्फाबेट चेक करने हैं, नंबर चेक करने हैं, दैट इज आई ऑलरेडी क्रिएटेड द टैग। तो आपको जाकर एक्सएमएल में क्या करना है, उन टैग्स को जाकर स्पेसिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सएमएल बेस्ड वैलिडेशन। ठीक है, सो टू डू एन एक्सएमएल बेस्ड वैलिडेशन, इसकी भी एक अप्रोच है, जैसे कि प्रोग्रामेटिक की अप्रोच थी कि आई नीड टू ओवरराइड एंड वैलिडेट मेथड। सो द अप्रोच नंबर 1 इज, अगर आपको प्रोग्राम एक्सएमएल बेस्ड वैलिडेशन करना है, सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्रिएट अ वन फाइल। तो मैं एसआरसी में जाता हूँ, इन एसआरसी इन माई एक्शन पैरेलल टू माई एक्शन, एक्शन इज योर मॉडल, पैरेलल टू माई एक्शन आई नीड टू क्रिएट अ validation file, and the syntax to create this validation file is the same name as action hyphen validation.html। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल वैलिडेशन एक्सएमएल फाइल बना रखी है, एंड इट हैज अ टैग कॉल्ड वैलिडेटर्स। तो कौन सा टैग है यहाँ पर, वैलिडेटर्स, और वैलिडेटर्स के इनसाइड आई स्पेसिफाई फील्ड नेम इक्वल्स टू नेम। सो दिस इज माय फील्ड नेम जो हम लोगों ने जेएसपी में नाम दे रखा है, और इस फील्ड नेम में जाकर मैंने लिखा फील्ड वैलिडेटर टाइप इक्वल टू रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग का मतलब है आपके पास, तो चेक कर रहा है कि भाई इसके अंदर आप कुछ डालोगे तो चलना है, वरना अगर ब्लैंक है तो मैं वैलिडेशन एरर मार दूंगा। अब वो वैलिडेशन एरर क्या होगा, तो मैंने बोला कि रिक्वायर्ड स्ट्रिंग मतलब मेरे को स्ट्रिंग चाहिए, और जो स्ट्रिंग डालेगा तो पहले मैंने डाला पैराम नेम ट्रिम। इसका मतलब जब भी वो स्ट्रिंग डाले पहले ट्रिम करो, ट्रिम करने का मतलब इसके स्पेसेस हटा दो, क्या पता है स्पेसेस डाल दो, है ना। तो इसके बाद मैंने यहाँ जाके लिखा मैसेज की। सो इट मींस इफ रिक्वायर्ड स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग नहीं मिलता और स्पेसेस मिलते हैं, स्पेसेस को ट्रिम करने के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं जाकर एरर दिखाऊंगा, डेट इज एरर डॉट रिक्वायर्ड। और एरर डॉट रिक्वायर्ड को जाके वो कहाँ ढूंढने वाला है, ग्लोबल डॉट प्रॉपर्टी में, और यहाँ मेरे को की को मेंटेन करनी होगी, व्हाट इज एरर डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एरर डॉट रिक्वायर्ड कोई की नहीं है, सो आई विल मेंटेन, मैं यहाँ जाकर मेंटेन करता हूँ लॉगिन फॉर्म डॉट नेम एरर। तो मैं इस की को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर एरर डॉट रिक्वायर्ड की जगह अपना की स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, तो इट विल फायर लॉगिन फॉर्म डॉट नेम एरर, मेरी की के हिसाब से मैसेज दे देगा, दैट्स माय कस्टमाइज। ठीक है, सेम अगर मेरे पास अगर कोई एज फील्ड है, न्यूमेरिक फील्ड है, तो मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ रिक्वायर्ड, इसका मतलब एज में कुछ ना कुछ डाले, अगर नहीं डालता तो मैं उसके आगे भी की डाल दूंगा, इट मीन्स कि भाई ये मैसेज दिखाए, राइट। अगर मेरे पास एज है, अभी हमारे पास एज है नहीं कुछ उसके अंदर, देन द नेक्स्ट थिंग इज फील्ड वैलिडेटर टाइप इंट। तो उसका मतलब बोल रहा हूँ कि भाई दैट्स अ इंटीजर, और इंटीजर के केस में मैं से बता रहा हूँ
कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100। मिनिमम 1 मैक्सिमम 100 का मतलब है कि वो जो रेंज डालेगा वो इस रेंज के बीच में होनी चाहिए। अब यही सेम काम कोड से कर सकते हो वहां जाकर, बट अगर आप उसका कोड मेंटेन नहीं रखना चाहते, यू वांट टू मेंटेन एन एक्सएमएल, तो उसने एक एक्सएमएल वे भी दिया है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ जाकर लिख दिया मिनिमम 1 मैक्सिमम 100, और उस केस में एरर क्या दिखेगा, समझ रही बात। तो आपको एक की मेंटेन करनी है ग्लोबल और प्रॉपर्टीज में, और लिखा है कि दिस एज इज नॉट बिटवीन 1 to 100, राइट। तो अब इसका फ्लो क्या है, वो बोलता है कि आपको जब भी वैलिडेशन लगानी है एक्सएमएल बेस्ड, वो हमेशा एक्शन क्लास के नाम पे ही होनी चाहिए, कि जिस एक्शन क्लास पे लगानी है तो ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा एक्शन क्लास को उसका वैलिडेशन। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आपको स्टैंडर्ड एक्सएमएल में एंट्री करनी है सेम, दैट्स अ कांस्टेंट नेम, बताना होगा ना प्रॉपर्टी फाइल कौन सी है। एंड द थर्ड थिंग इज आपको इनपुट की भी एंट्री करनी है। इट मींस अगर वैलिडेशन फेल हो तो वापस कौन से पेज पे लेके जाए जहां पर वैलिडेशन मैसेजेस वो दिखाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ वैलिडेशन, प्रोग्रामेटिक एंड एक्सएमएल। और प्रोग्रामेटिक करने के लिए क्या करना है और एक्सएमएल करने के लिए क्या करना है, क्लैरिटी। तो अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एक्सएमएल बेस्ड वैलिडेशन, उसके टैग्स दे रखे होंगे, जैसे मैंने दिखाया ना, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है, मिन रेंज है, मैक्स रेंज है, ऐसी बहुत सारे उसमें वैलिडेशन के टाइप बना रखे हैं। तो प्रोग्रामेटिक यूजली तब यूज किया जाता है जब आपको कोई टैग ऐसा मिल रहा है और आपके पास कोई कस्टमाइज वैलिडेशन है जिसका आपको कोई टैग ही नहीं मिलता है, तो आप प्रोग्रामेटिक बिल्ड करते तो सर दोनों भी बना सकते हैं? दोनों बना सकते हैं, दोनों चलेंगे। तो सर तो आप दोनों डिस्टिंक्ट बनाओगे, सेम नहीं। जैसे कि इसकी तो चलो अलग कस्टमाइजेशन वैलिडेशन अलग होगी, और उसे कैसे पता होगा कि वो इसमें वैलिडेशन में कि वो वाला वैलिडेशन दोनों फ्लो चलाता है ना। दोनों सर मतलब पहले किस पे चलाएगा? पहले वो जब चला रहा है तो आपके वो एग्जाम उसको चला रहा है, क्या कहते हैं, वैलिडेट मेथड, ठीक है, वैलिडेट मेथड चला दिया उसने। तो प्रोग्रामेटिक पहले होगी, दोनों फिर एक्सएमएल वाली। एक्सएमएल अपने आप पिक्चर में आ जाएगी जब से फ्लो है ना। अगर आपने एक्सएमएल को पिक्चर बनाना है, आपको एक्शन के नाम पे ही एग्जाम बनानी है, ये फ्लो है इसका। अच्छा जहाँ एक्शन होगा वहीं एक्सएमएल बेस्ड होनी चाहिए, दैट्स अ फ्लो। अगर आप इसे चेंज कर दोगे वैलिडेशन चलनी बंद हो जाएगी। तो यानी जब भी वो ऐसा हैश वैलिडेशन डॉट एक्सएमएल मिलेगा एक्शन, वो एक्शन उठेगा, तो ये कस्टमर एक्शन है मेरे पास है, तो कस्टमर एक्शन है तो उसको मतलब कस्टमर एक्शन की क्लास होनी चाहिए मेरे पास पहले। अगर क्लास है तो फिर वो ढूंढेगा एक्सएमएल, अगर एक्सएमएल है देन वो चलाएगा, उसको देन चलाएगा। इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड एक्सएमएल में कोई स्पेशल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, इसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक्सएमएल क्लियर है। हाँ, सो द टॉपिक इज इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन सेज कि आप मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। तो मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट बनाने का मतलब है कि मैं जीएसपी मल्टीपल बनाऊं, है ना। तो अगर एक हिंदी के तो एक हिंदी वाली जीएसपी बनाओ, इंग्लिश वाले बनाओ। तो अभी भी हमने पढ़ा है कि भाई मैसेजेस को कहाँ रखो, प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर आप जीएसपी में दिखा रहे हो डेट्स अ इंग्लिश दिखा रहे हो, हिंदी दिखा रहे हो, डेट्स अ मैसेज। तो आप मैसेजेस की फाइल बनाओ रेदर देन जीएसपी बना रहे हो। तो जीएसपी इज वन वेयर मैसेजेस आर मल्टीपल। ये हम लोगों ने जावा में किया है कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश दिखानी है तो आप रिसोर्स बंडल यूज करते हो और लोकल नाम से क्लास होती है उसे यूज करते हो, जिससे आप मल्टी लैंग्वेज चला सकते हो। अब कोडर को रिसोर्स बंडल का भी कोड लिखना पड़ता है और लोकल का कोड भी लिखना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ ऑलरेडी रेडीमेड है। तो यहाँ इसने एक रेडीमेड इंटरसेप्टर बिल्ड करके रखा है। हमें क्या करना है, उस इंटरसेप्टर को सिर्फ ऑन करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चल रहा है अभी। ये कहता है कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज चलानी है तो आपका एक्शन जब चलेगा तो एक्शन से पहले इंटरसेप्टर चलेगा। तो इंटरसेप्टर क्या है आप समझ लो, एक्शन से पहले अगर कोई प्री प्रोसेसिंग करानी है तो इंटरसेप्टर चल रहा है, और पोस्ट प्रोसेसिंग करानी है तब भी इंटरसेप्टर चल रहा है। सो एक्शन से पहले आपको समझ लेना है प्री एंड पोस्ट, जो भी काम करवाना है आपको डेट इज थ्रू इंटरसेप्टर। तो इसने क्या किया, इसने एक रेडीमेड इंटरसेप्टर बनाया डेट इज कॉल्ड i18n इंटरसेप्टर। एक रेडीमेड इंटरसेप्टर बना के रख दिया, दैट्स ऑफ बाय डिफॉल्ट, यू नीड टू ऑन इट। आपको जाकर उसे ऑन करना है, ठीक है।
अब ये इंटरसेप्टर क्या कहता है, ये कहता है मैं जावा कोड इंटरनली, तो जो किसको सपोर्ट करता है, रिसोर्स बंडल को और लोकेल को। तो अब आपको क्या करना है, जो अपनी प्रॉपर्टी फाइल बनानी है, दो तरीके की बनानी है, एक इंग्लिश वाली और एक हिंदी वाली। जैसे मैंने बना दिया global_hi, राइट, तो हिंदी के लिए बना दिया, एक ऐसी फ्रेंच के लिए, एक जर्मन के लिए, जैपनीज के लिए, ऐसे करके मैं अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल बना दूंगा। की सेम रहेगी हमेशा, वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू में हिंदी या इंग्लिश ऐसा आपने लिखा होगा, ठीक है। अब बात आती है, ये इंटरसेप्टर क्या करने वाला है, दिस इंटरसेप्टर इज गोइंग टू रीड दिस फाइल, आई मीन द global.property इज रीडिंग बाय दिस इंटरसेप्टर, आईटीन इसे पढ़ेगा। और वो कौन सी चूज करने वाला है इंटरसेप्टर में से फाइल, आई मीन प्रॉपर्टी फाइल कौन सी पढ़ने वाला है, हिंदी या इंग्लिश, डिपेंड्स कि वो कौन सी पढ़ेगा, है ना। जिस भी फाइल को पढ़ेगा, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी फाइल को, इट विल यूज अ वेरिएबल कॉल्ड रिक्वेस्ट अंडरस्कोर लोकेल। तो हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट अंडरस्कोर लोकेल नाम का वेरिएबल है जिसमें हिंदी या इंग्लिश पास करना है एज अ पैरामीटर। वो पैरामीटर किसके पास पहुंचेगा, IIT इंटरसेप्टर के पास, एंड बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर वो डिसाइड करेगा कौन सी फाइल पढ़नी है। अभी सोचो ना, ये कोड हमें लिखना पड़ता था, नाउ दिस कोड इज टेक केयर बाय स्ट्रट्स इटसेल्फ। यही बेनिफिट है देखो फ्रेमवर्क का। इसका मतलब अगर मैंने स्ट्रट्स यूज किया है तो इंटरनेशनलाइज इज द सेम वे, मतलब मेरे डेवलपर को दो स्टेप लेने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ऑन दिस इंटरसेप्टर, द फर्स्ट थिंग, एंड देन पास द पैरामीटर इन रिक्वेस्ट अंडरस्कोर लोकेल, दैट्स इट। और मेरे पास क्या शुरू हो जाएगा, मल्टी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा। सो टू डू दिस मल्टी लैंग्वेज थिंग, मैं यहां जाता हूं इन SRC, आई क्रिएट the first file, it's the English version, global.properties. So if you not specify en, it's treated as English by default. So आपको key लिखनी है और value लिखनी है, that's in English form. For Italian, the same key, the value is different. The value is in the Italian form. तो आप Google Translator पे जाओगे, इंटरनेट से वहां से निकाल लीजिए। रियल टाइम में आपकी कंपनी में कोई ट्रांसलेटर होगा जो इटालियन जानता होगा, वो इसको फिल करके दे देगा आपको, राइट। एंड फॉर द हिंदी वर्जन I also specify the हिंदी thing, right? और उसके यहाँ पर /u आ रहा है, that is a Unicode, because हिंदी कैरेक्टर्स यहाँ डिस्प्ले नहीं होते। So whatever you write, it converted into the Unicode. That's a universal characters, right? तो आपने तीन चीजें बनाई। The next thing is, the first absolute need is आपको यहाँ प्रॉपर्टी फाइल की एंट्री करनी, जो हमने वैलिडेशन में भी किया था। And the next thing is, you need to add the entry of two things. One is the interceptor entry, that is IIT interceptor. तो इसका मतलब इस इंटरसेप्टर को जाकर ऑन कर देगा, राइट। दिस इंटरसेप्टर इज डिपेंड ऑन मैनी इंटरसेप्टर्स। ये इंटरसेप्टर किस पे डिपेंड है, बहुत सारे इंटरसेप्टर पे डिपेंड है। सो दैट इंटरसेप्टर ग्रुप इज कॉल्ड बेसिक स्टैक। तो आपको समझना है, जब मैं इंटरनेशनलाइजेशन वाला इंटरसेप्टर चलाऊंगा तो रिक्वेस्ट लेके जाएगा आगे, तो रिक्वेस्ट लेना इंटरनेशनलाइजेशन वाले को नहीं आता, दैट्स अ रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, ठीक है। अब रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट हैंड ओवर होगी एक्शन के पास, एक्शन विल डू प्रोसेसिंग और उसे वो रीड करेगा प्रॉपर्टी फाइल को, तो देयर इज अनदर इंटरसेप्टर। सो देयर आर बंच ऑफ इंटरसेप्टर, दोज बंच ऑफ इंटरसेप्टर इज आइदर आई नीड टू राइट वन आफ्टर अनदर और आइदर आई यूज बेसिक स्टैक। सो बेसिक स्टैक इज अ ग्रुप नेम ऑफ दैट बंच ऑफ इंटरसेप्टर्स। समझ रही बात, जिसका मतलब मेरे को वो एक एक करके इंटरसेप्टर याद नहीं रखना है, मेरे को क्या रखना है, IIT इज बेसिकली डिपेंड ऑन बेसिक स्टैक, ठीक है। So these are the interceptor, it's a predefined. तो लेकिन IIT बेसिक स्टैक के पार्ट नहीं है, बेसिक स्टैक का पार्ट नहीं है, राइट। So IIT is dependent on the basic stack, it is depend on bunch of interceptors, right। तो ये मेरे पास बिल्ड हुआ। Now I am saying this IIT is basically picking request underscore locale. So request underscore locale के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, I have a file called index.jsp. And index.jsp says English hyperlink and Hindi hyperlink and Italian. ये मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा है कि English person understand English, so that's why it is written in English. Hindi person understand Hindi, that's why written in Hindi. And all are hyperlinks, ठीक है। अब ये hyperlinks basically go to this action जो मैंने बनाया language action, and that language action में मैंने क्या पास कर दिया, request underscore locale. It means I am saying English United States, Hindi India, Italiano Italy, right? तो ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया, and this
थिंग इज एक्चुअली टेक केयर बाय दिस I89. तो इसका मतलब ये वैल्यूज किसके पास पहुंच रही हैं? I89. इसका मतलब मेरे को रिक्वेस्ट एड्रेस को लोकल ही यूज करना है. इफ आई स्पेसिफाई एनीथिंग एल्स तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझता कैसे सिर्फ रिक्वेस्ट एड्रेस को लोकल. क्लैरिटी? So this thing is handed over to this I89 and I89 is basically depend on basic stack. तो basic stack को यूज करके क्या पढ़कर आ जाएगा? प्रॉपर्टी फाइल. अब यहां से आप देखो, जब मेरा लैंग्वेज एसी चलता है, so that language AC is basically my language action. When this language action is run, it will return success. ये कुछ करता नहीं, सिर्फ क्या रिटर्न कर देता है? Success रिटर्न करता है. And success means is basically it will return to login.jsp. और in this login.jsp मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने यहाँ लिखा है user ID password, ऐसा कुछ दिखाने के लिए. So I specify user ID and the password. And this key जो user ID password है, मैंने 3 जगह मेंटेन करी है, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, एक इटालियन में. तो अगर आप देखोगे इस की को that I maintain in English, तो अगर आप देखो we have this user ID and the password. In Hindi I maintain that is user ID and the password, and in Italiano I maintain this user ID and the password, the same key. ठीक है, वो कौन से प्रॉपर्टी फाइल को पढ़ेगा? Let's depend on my रिक्वेस्ट एड्रेस को लोकल में मैंने किसको क्लिक लगाया. एंड टू इसमें सब कुछ नजर आ रहा है ना आपके पास, हिंदी इंग्लिश सब कुछ. हिंदी इज अ स्पेशल कैरेक्टर, राइट? सो टू अंडरस्टैंड दिस स्पेशल कैरेक्टर मैंने एंट्री करी है कैर सेट UTF-8, मतलब यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट्स को समझता हूँ. नाउ आई रन दिस थिंग, मैं इसे जाके एग्जीक्यूट करता हूँ. तो आपके पास पेज आएगा विच इज सेइंग कि आई हैव 3 लिंक्स, हिंदी, इंग्लिश and Italian. So it is starting the server. तो ये जितना भी कोड है सर्वर पे डिस्पैच कर रहा है. So here it is. Server started. Then I copy this thing and paste it here. Right. When I click on this English, so it will show the English version. ठीक है? Then I go back and click Hindi, so it will show Hindi version, right? And if I click on Italiano, it will show the Italian version. सर लेकिन जब चेंजेस करेंगे जो टेक्स्ट एंटर होगा यूजर से, वो तो इंग्लिश में होगा सर? नहीं, वो अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड है, हिंदी एंटर होगा. सो कीबोर्ड से होगा ना आपके पास एंटर. क्लैरिटी है? So this is internationalization, how it is working. So the third topic is dynamic method invocation. Dynamic method invocation का मतलब है कि अगर मेरे पास एक JSP उसमें 4 बटन और 4 डिफरेंट एक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि बोलो कि एक ऐड करता हूँ, एक डिलीट करता हूँ, एक सब, एक ऐड करता हूँ, डिलीट करता हूँ, सर्च करता हूँ, एक अपडेट करता हूँ, ऐसे अलग अलग एक्शन. तो मेरे पास एक तरीका ये कि मैं ये सोचूं कि 4 अलग अलग एक्शन बनाऊँ. तरीका ये कि एक एक्शन बनाऊँ उसमें 4 मेथड बनाऊँ. ठीक है? और जब मैं 4 मेथड बनाऊंगा तो इनकी एंट्री भी तो करनी होगी कि अगर मैं फॉर्म पे जब सबमिट का बटन दबाऊं तो वो कौन से एक्शन पे लेके जाएगा, आई मीन कौन से मेथड को कॉल करेगा. ठीक है? तो अब मुझे इसे करवाना है डायनेमिकली. तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं जाकर 4 बार एक्शन लिखूं. तो आपको ऐसा समझना है कि अगर मैं लॉगिन पे सबमिट करता हूं, आई एम सेइंग कि लॉगिन पे एक्शन होता है, तो एक्शन का मतलब क्या है? लॉगिन पे पहुंचाएगा, लॉगिन को जाके str.example में देखेगा, str.example में लॉगिन की एंट्री मिलेगी, लॉगिन के बेसिस पे कहाँ पहुंचाएगा? लॉगिन एक्शन पे. और लॉगिन एक्शन पे जब ये पहुंचेगा तो किसे चलाएगा? उसके एग्जीक्यूट को, जो हम इसके एग्जीक्यूट मेथड बनाएंगे, दिस वन. है? तो अगर मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं है, एक ऐड है, एक सब्ट्रैक्ट है, एक मल्टीप्लाई, एक ऐड है, सब डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मुझे क्या करना है? मुझे जाकर ऐसा एक्शन टैग लिखना पड़ेगा, उसका नेम लिखना पड़ेगा, लेट्स से दैट्स एन ऐड, और क्लास का नाम सेम है, लेट्स से मैं बोलूँ com डॉट बेसिक्स डॉट लेट्स से लॉगिन एक्शन, ये मेरी क्लास का नाम है. और मैं बोलता हूँ इस वाले एक्शन पे मेथड कॉल होगा ऐड यूजर, दैट्स माय ऐड यूजर. और इसके बाद मैंने स्पेसिफाई किया दैट्स एन एक्शन, दैट्स वन एंट्री, क्योंकि बस 4 बटन है,
चारों के अलग अलग एक्शन होंगे एंड देन देयर विल बी अ रिजल्ट नेम सक्सेस एंड उसके बेसिस पे बोलता हूँ इट विल गो टू द add.jsp देयर विल बी अ रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ जाकर इसी एंट्री को कॉपी करना है फिर से, और अगर मेरे पास दूसरा मेथड है डिलीट यूजर तो मुझे सेम यही रखना है, यहाँ क्या रख देना है और यहाँ जाकर क्या बनाना है ना, फिर यहाँ जाके लिखना है इसके लेट्स से सक्सेस के मैं बोलता हूँ कि इफ द रिजल्ट इज डिलीट इट विल गो टू द डिलीट, है ना। फिर मेरे को ऐसे बनाना है ऐड डिलीट सर्च अपडेट, 4 बार एंट्री करनी पड़ेगी। सो आई वांट टू क्रिएट ओनली वन, मैं एक बनाना चाहता हूँ एंट्री एंड इट विल वर्क फॉर ऑल बटन्स। देन हमारे पास आता है डायनेमिक एक्शन वाला फंडा, है ना, कि मैं डायनेमिकली सब चीजें बिल्ड करूँ। सो फॉर दिस so the requirement is for creating this dynamic invocation is you have 4 buttons and 4 will do 4 different things। चारों को क्या करना है, अलग अलग काम करना है। so for this I need to create an action, मैं इसका एक action build करूँ, that's an action and in this action I create execute, I create add, I create update, I create delete, अलग अलग मैंने methods build कर दिए और वो कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट मुझे देंगे। नाउ थिंग इन start.xml मैंने एंट्री क्या करी है, सिर्फ एक एंट्री करी है। ठीक है, तो अगर आप पहले JSP पे जाओ तो JSP पे देखो एक्शन का नाम क्या है, यूजर, और उसके बाद ऐड यूजर है, अपडेट यूजर है, डिलीट यूजर है। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ऐड अपडेट और डिलीट। सो दिस इज द यूजर, दैट्स अ यूजर एक्शन। ठीक है, और यहाँ इसके नाम के पैटर्न बनाया मैंने, ऐड देन यूजर, डिलीट देन यूजर, अपडेट देन यूजर। और एंट्री में आप देखो, एंट्री में मैंने क्या लिखा है, स्टार यूजर। इट मींस कोई भी रिक्वेस्ट जिसके एंड में क्या हो, यूजर, राइट, तो वो इसे चलाएगा। अब उसे कैसे पता लगेगा कि ऐड वाले मेथड में जाना है, डिलीट वाले में जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको यूजर एक्शन पे जाकर मेथड के नाम ऐसे रखना है ऐड, क्योंकि वहां क्या नाम रखा था हमने, ऐड यूजर, तो उस आएगा क्या नाम उसका, ऐड देन यूजर। ऐड को क्या समझेगा, मेथड का नाम, यूजर को क्या समझेगा, एक्शन का नाम। समझ रहे बात आप लोगों को, तो आपका एक ही एक्शन सबके लिए काम करना शुरू करेगा। सो अगर मेरे पास क्लिक हुआ इस पे ऐड यूजर पे, सो इट मीन्स वो क्या सप्लाई कर रहा होगा, ऐड यूजर। start.xml में क्या ढूंढेगा, ऐसा पैटर्न जिसके आखिर में क्या आ रहा हो, यूजर, तो इसके पास एक्चुअली आया क्या, ऐड यूजर। अब ये जाकर इस क्लास में जाएगा और इस मेथड पे आपने देख लो पैरामीटर मैंने क्या दिया, मेथड करली ब्रैकेट 1। इसका मतलब ये है कि मेथड का नाम डायनेमिक है, तो जो पहला यानी कि जो नाम आ रहा है ऐड यूजर, उसमें से ऐड यहां पकड़ा दो, यूजर छोड़ देगा सिर्फ वो, यूजर का मतलब दैट्स एन एक्शन, और वो इस क्लास में जाएगा यूजर एक्शन में और किसको ढूंढना शुरू करेगा, ऐड को। ऐड पे मैंने मैसेज क्या सेट कर दिया भाई, इनसाइड, एंड रिटर्न कर दिया सक्सेस। और ये सब पहुंच कर रहे हैं एक ही जगह। अगर आप चाहते हो ना इसकी भी अलग अलग हो JSP, तो यहां पर भी क्या लिख दो, 1.jsp, तो आपको JSP के नाम क्या रखना है, add.jsp, delete.jsp, क्योंकि वहां नाम क्या दिया हमने, ऐड यूजर, तो यूजर तो इसके पास रह गया, पोर्शन उसने क्या निकाल लिया, ऐड। मेथड का नाम भी क्या होगा, ऐड, और JSP का नाम भी क्या होगा, ऐड, राइट, ताकि वो पहचान पाए। पता नहीं चला कहाँ पे उसे एक वर्ड कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये तो पता चल गया ना, हमने बता तो दिया है, यूजर, ये मतलब यूजर, second word है। दैट्स अ, ये ब्रेकिंग पॉइंट है उसका, स्टार जो है वो फर्स्ट है। तो ब्रेकिंग पॉइंट इज दिस यूजर। ठीक है, तो आपका एक ही एक्शन से काम हो गया, जबकि आपको इसके लिए क्या बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल 4 एक्शन बनाने पड़ते हैं हर एक के लिए। सो दैट्स बिकम अ गुड थिंग, दैट इज डायनामिक मेथड। और इसका सिनेरियो ये है कि जब आपके पास एक स्क्रीन हो, 4 बटन हो और चारों अलग अलग काम करना चाहते हो, तो आप 4 मेथड्स बनाओगे अलग अलग, जो कि मैंने यहाँ बिल्ड करे, और उनके 4 एक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्शन का पैटर्न बनाओगे। तो आपको पैटर्न याद रखना है कि दैट पैटर्न वुड बी लाइक ऐड यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर। तो 1 में वो क्या ले लेगा, ऐड, अपडेट, डिलीट, यूजर पोर्शन साइड कर देगा। क्लियर? तो अब आप अगर इसको देखो, तो मैं अगर ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरे को लिखा आएगा इनसाइड ऐड यूजर, मैं क्लिक करता हूँ अपडेट तो लिखा आएगा इनसाइड अपडेट यूजर, जिससे वो आइडेंटिफाई कर रहा है, डिलीट इनसाइड डिलीट यूजर। क्लैरिटी है? दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेथड इन्वोकेशन, यानी कि आप डायनेमिकली क्या कर रहे हो, मेथड को इन्वोकेट करा रहे हो, एंड दैट्स अ सिनेरियो।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेम स्पेस एंड मल्टीपल स्टड एक्सएमएल। तो नेम स्पेस की नीड क्या है पहले हम ये समझते हैं। नेम स्पेस इसलिए कि अगर आप एक स्टड्स की एप्लीकेशन बना रहे हो, सपोज आपके पास अलग अलग मॉड्यूल है, मैंने बोला कि एक बंदा एडमिन मॉड्यूल बना रहा है, तो अगर आप में से कोई एक एडमिन मॉड्यूल बना रहा है तो उसके पास एडमिन से रिलेटेड एक्शंस होंगे। तो एड्रेस बार में एक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए /admin/add-admin और डिलीटेड। तो इसका मतलब यूआरएल क्या हो जाना चाहिए, वो स्टार्टिंग किससे होता हो, एडमिन से। जैसे आप देखते हो ना याहू पे चैट है तो लिखा आता है yahoo/chat, yahoo/mail। इससे क्या समझ आता है कि मैं मेल वाले यूआरएल्स के अंदर हूँ या चैट वाले यूआरएल। अभी हमारे में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यूआरएल्स में। अगर यूआरएल्स में देखें तो ये सिर्फ बता रहा है डायनेमिक मेथड इन्वोकेशन/index.js। तो डायनेमिक मेथड इन्वोकेशन इज माय प्रोजेक्ट नेम। तो ये तो ऐसा होगा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग/index.js। लेकिन मैं बोलूं ऑनलाइन शॉपिंग/एडमिन, तो मुझे क्या समझ आ रहा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का एडमिन वाले यूआरएल चल रहे हैं। अगर लिखा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग/कस्टमर्स तो या बायर्स, तो इसका मतलब कस्टमर या बायर्स वाले चलते हैं, उस वाले सेक्शन में बैठे। दैट इज कॉल्ड नेम स्पेस। उसे हम क्या बोलते हैं, नेम स्पेस बोलते हैं। अब हमें यहां जाकर सिर्फ एक एंट्री सीखनी है कि हाउ वी कैन चेंज द नेम स्पेसेस, कि हम कैसे नेम स्पेसेस को चेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्टड सेक्शन। ठीक है, सो इन दिस स्टड एक्सएमएल, ये मेरे पास एक स्टड एक्सएमएल है। अभी नेम स्पेस को यूज करने के लिए आई क्रिएट अ सेपरेट एक्सएमएल, और आप देखो इस नेम स्पेस में मैंने क्या लिख दिया है, /admin। इसका मतलब ये कि ये नेम स्पेस किससे शुरू होगा, एडमिन से। तो जितने भी एक्शंस होंगे, अब मैं जितने भी एक्शंस बनाऊंगा वो किसके अंडर जा रहे होंगे, एडमिन नेम स्पेस के अंडर। अब मैं जितने भी एक्शंस बनाता जाऊं सब यूजर एंड यूजर को ऐसे नजर आएंगे कि आई एम इन द एडमिन सेक्शन। ठीक है, तो यूजर फील बहुत बढ़िया रहती है। नाउ अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके पास एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट आएगी अगली, कि भाई मैं इन सबको अलग अलग एग्जाम्पल बनाऊं रेदर देन एक एग्जाम्पल में। और सोचो एडमिन के जितने एक्शंस हैं वो भी एक एग्जाम्पल में, बायर्स के भी एक है, मिक्स हो जाएंगे ना। तो वो मिक्स ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, admin.xml बना दिया मैंने। जैसे हम बनाया था ना std.xml, सेम कॉपी पेस्ट, सिर्फ यहाँ इसका नाम क्या दे दिया, admin.xml। और आप एंट्री करने का तरीका देखो तो कोई चीज नहीं है, इट्स सेम, राइट, सेम। अगर मैं std.xml में जाऊं तो मैंने एक और एग्जाम्पल बनाई, दैट्स अ user.xml, सेम वे। द ओनली थिंग इज मैंने नेम स्पेस स्पेसिफाई कर दिया इसका भी, /users। मतलब ये सारे एक्शन किसमें चल रहे होंगे, यूजर सेक्शन में। अब std.xml इज माय एम्प्टी। std.xml देख रहे हो आप, कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ क्या लगा दिया मैंने, इंक्लूड। इसका मतलब बोल रहा हूँ कि भाई std.xml जाकर किन दो फाइलों को इंक्लूड कर ले, एडमिन को, इसे बोलते हैं मॉडलराइजेशन। अब इसे सोचो ना कि अगर हम सब अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मेरे पास 3 लोगों की डेवलप टीम है जो एडमिन सेक्शन पे काम कर रही है, वो अपनी admin.xml बनाएगी, दूसरे buyers.xml बना रहे होंगे, users.xml बना रहे होंगे। अब फाइनली जब इंटीग्रेशन करनी होगी तो मैं सबके एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेट कहां कर दूंगा, std.xml। लेकिन अगर आप सोचो सब std.xml में काम कर रहे हैं तो सब अपने कट करेंगे कोड को और एक के अंदर पेस्ट करेंगे, चांसेस है कुछ ना कुछ लूज हो सकता है, राइट। सो दैट्स अ मॉडलराइजेशन इन स्टड्स बाय यूजिंग क्रिएटिंग मल्टीपल नेम स्पेसेस एंड मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मॉडलराइजेशन कर देते हैं। अब इसे चलाने के लिए I just launch this index.jsp। अब index.jsp को जब मैं लॉन्च करता हूं तो आप इसके एड्रेसेस पे ध्यान देना कि इसके एड्रेसेस में कैसे देना। सो द एड्रेस वे इज, अगर आप एड्रेसेस को देखो, वंस द सर्वर स्टार्टेड ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके एड्रेसेस कैसे दिए। तो एड्रेसेस मैंने अब इस तरीके से दिया, admin का एक्शन, user का एक्शन। अगर हम यहां जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो, वंस आई क्लिक ऑन दिस एडमिन, अभी आपको देखना राइट नाउ वी आर ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट के इनसाइड है, राइट। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एडमिन इट विल रीडायरेक्ट टू एडमिन एक्शन। तो एडमिन क्या चीज आ रही है आपके पास, नेम स्पेस देन एक्शन नेम। देन सेम अगर हम यूजर के लिए करते हैं, देखो जैसे बैक करता हूं index.jsp पास, वंस आई क्लिक ऑन दिस तो यूजर स्लैश, समझ रहे हैं आप लोगों को। तो यूजर विजिबिलिटी भी आसान है, उसे पता है किस सेक्शन के इनसाइड हूं, उसको यूआरएल से समझ आ रहा है ना। और कोडर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो गया मेरे पास।
तो अगर हम यहां जाकर देखें ना इसको index.jsp को, ये पुराना वाला है, so the new one is this one, index.jsp. so in this index.jsp अगर आप देखो तो URL देखा आप कैसे लिखे, admin/admin action, namespace then action name. समझ आया आपको what is the namespace? So namespace is just to logically break the actions. ठीक है, clarity. So these are the topics we have covered.